Good morning, class 5th. How are you? I hope you all are fine. So, this is your math period. Take out your maths book and your maths notebook. Open your maths book and your maths notebook. So, yesterday we were doing multiplication of fractions, right? So, today we'll carry forward the topic and do some word problems, okay? Write down today's date 15 September 2020. Then write down classwork and then write down the heading word problems. Done? Now note down question 1. Ria bought 4.5 kg of flour. She used 1/3 of it to make buns. How much flour did she use? So this is the question. Ria bought 4/5 kg of flour. रिया ने 4.5 kg flour खरीदा. She used 1/3 of it. उस 4/5 kg में से उसने 1/3 क्या कर लिया? यूज कर लिया. क्या किस लिए? बंस बनाने के लिए. So how much flour did she use? उसने कितना flour यूज किया? Okay? Now write down the answer. FLOUR, flour used by Ria to make buns. कितना यूज किया था उसने फ्लावर बंस बनाने के लिए? 1/3 यूज किया था ना. किसका? कितने का 1/3 यूज किया था? 4/5 का. सो 1/3 फ्लावर उसने यूज किया 4/5 kg का. ऑल राइट. सो 1/3 ऑफ की जगह पे हम क्या लगा देते हैं? मल्टीप्लाई. एंड 4/5 write kg also. So 1/3 of 4/5. Now simply multiply 1 into 4/3 into 5 is equal to 1 4s are 4/3 5s are 15. So the answer is 4/15 kg flour she used. She used 4/15 kg flour. Complete the question. After that, note down question number 2. Anju pick some strawberries she uses 5/6 of the strawberries to make
jam. She gives 3/4 of the remainder to her brother. What fraction of the strawberries did Anju's brother receive? So this is the question. Anju picks some strawberries. She uses 5/6 of the strawberries to make jam. अंजू ने कुछ स्ट्रॉबेरीज ली और उसने उन स्ट्रॉबेरीज में से 5/6 स्ट्रॉबेरीज यूज की जैम बनाने के लिए. उन्हीं स्ट्रॉबेरीज में से शी गिव्स 3/4 ऑफ द रिमाइंडर टू हर ब्रदर. 5/6 की तो उसने जैम बना लिया, जो बची थी उनमें से 3/4 उसने अपने ब्रदर को दे दिया. सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्ट्रॉबेरीज डिड अंजूज ब्रदर रिसीव? तो अंजू के ब्रदर को कितनी स्ट्रॉबेरीज मिली? नोट डाउन द क्वेश्चन. Now write down the answer with me. Strawberries used for making jam. कितनी स्ट्रॉबेरी यूज की थी हमने जैम बनाने के लिए? 5/6. राइट. सो देयरफॉर स्ट्रॉबेरीज रिमेनिंग. तो कितनी स्ट्रॉबेरीज बची होंगी? सी, हम 1 में से 5/6 को माइनस कर देंगे तो उससे हमको आंसर मिल जाएगा कि कितनी स्ट्रॉबेरीज बची होंगी. सो 1 माइनस 5/6. 1 के नीचे कुछ नहीं है तो वील कंसिडर इट एज 1. सो वी नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट. सो 1 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 6. सो 1 6 and 6 1s are 6 minus 5. So is equals to 1/6. So कितनी स्ट्रॉबेरीज बची थी? 1/6. Now strawberries given to brother. Strawberries given to brother. जितनी बची थी उसमें से हमने 3/4 किसको दिया था? ब्रदर को. तो बची कितनी थी? 1/6. और उसमें से हमने 3/4 किसको दे दिया था? ब्रदर को. तो 3/4 ऑफ रिमेनिंग. सो 3/4 ऑफ रिमेनिंग कितना था? 1/6. ओके. सो 3/4 ऑफ की जगह हम क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई एंड 1/6. नाउ 3 1s are 3 and 3 2s are 6 is equals to 1/4 multiply by 1/2. So simply multiply it. 1 into 1/4 into 2 is equals to 1 1s are 1/4 2s are 8. So ब्रदर को कितनी स्ट्रॉबेरीज मिली थी? 1/8 strawberries. Okay. Complete the question. After that I'll explain you again.
सी चिल्ड्रन, स्ट्रॉबेरी यूज्ड फॉर मेकिंग जैम. कितना स्ट्रॉबेरी यूज किया था हमने जैम बनाने के लिए? 5/6. सो स्ट्रॉबेरीज रिमेनिंग कितना हुआ? 1 में से हम 5/6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो आंसर आ जाएगा 1/6. आफ्टर दैट स्ट्रॉबेरीज गिवन टू ब्रदर. ब्रदर को हमने कितनी स्ट्रॉबेरीज दी थी? अंजू ने 3/4 दी थी. किसमें से? जो रिमेनिंग, जो जैम बनाने के बाद स्ट्रॉबेरीज बच गई थी, तो वो इतनी बच गई थी. सो 3/4 ऑफ रिमेनिंग. सो 3/4 ऑफ की जगह क्या लगा देंगे हम? मल्टीप्लाई एंड रिमेनिंग कितना था? 1/6. Then 3 1s are 3 and 3 2s are 6. After that multiply it and you will get your answer. Okay. Now note down one question for homework. Write down the date 15 September 2020. Homework. And then write down the question. Neeta works for 8 2/3 hours in a shop. If she earns rupees 126 per hour, how much does she earn in all? Question is, Neeta works for 8 2/3 hours in a shop. नीता 8 2/3 hours एक शॉप में वर्क करती है. अगर वो हर आवर का 126 रुपीज अर्न करती है, तो वो टोटल कितना अमाउंट अर्न करती है? ओके. सो इफ शी अर्न रुपीज 126 पर आवर, एक घंटे के वो कितने रुपीज अर्न करती है? 126. सो इन 8 2/3 आवर्स में नीता कितना अर्न करेगी? हम 126 को 8 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले हम 8 2/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन से चेंज करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. ओके. सो डू दिस क्वेश्चन एज इन योर होमवर्क and share picture. Okay, so that's all for today's class. Do practice these 3 questions again and again at your home. Okay, so take care. Bye bye.